ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। परमाराध्य गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्तिजीर चरणे अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम निवेदन करे तारी अहेतुकी कृपार ऊपर भरोसा करे आज के आलोचना करब आध्यात्मिकताय सहजता। आध्यात्मिकता में सहजता, सिंपलनेस in spirituality. I didn't use the word simplicity, simpleness. There is some differences between the word simplicity and simpleness. Here I mean to say simpleness in spirituality, सहजता। कवि एक जगह बोलছেন, it is very simple to become happy. It is very simple to be happy, but it is very difficult to be simple. It is very simple to be happy, but it is very difficult to be simple. আমরা আমাদের জীবনে জটিলতাকেই পছন্দ করি, কমপ্লেক্সকেই পছন্দ করি, নতুবা সন্তুষ্টি আসে না। সহজ সরল জীবনযাপনে আমাদের সন্তুষ্টি হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্ট্যাটাস না দেখাই, তখন আমাদের মনে শান্তি আসে না। আমরা ক্ষুধা নিবারণের জন্য ভাত ডাল সবজি খাই, কিন্তু তাতে সন্তুষ্টি হয় না। সেই চালকে গুঁড়ো করে বিভিন্ন ধরনের পিঠে বানানো, ইডলি দোসা বিরিয়ানি, চালের সাথে কাজু কিশমিশ পিস্তা বাদাম অধিক পরিমাণে ঘি ঢেলে পোলাও প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের গুরুপাক খাবার বানিয়ে না খেলে আমাদের সন্তুষ্টি হয় না। আর যতই গুরুপাক খাবার বানাই খাই, তত পেটের 12টা বাজে। আমাদের লজ্জা নিবারণ করার জন্য আমরা বস্ত্র পরিধান করি, কিন্তু সিম্পল বস্ত্রেতে আমাদের মন সন্তুষ্ট হয় না। বিভিন্ন ধরনের ড্রেস, ম্যাক্সি, মিনি, আল্ট্রা মিনি, বিভিন্ন ধরনের ড্রেস পরে যে লজ্জা নিবারণ করার জন্য मतलब जीवने कॉम्प्लेक्स ना एले आमादेर संतुष्टि है ना। जिंदगी में हम लोग सहज सरल सिंपल लाइफ यापन करने जब करते हैं तो मुझे संतुष्टि नहीं आती है। जब तक मेरा जो जुलूस है, जब तक मेरा जो स्टेटस है, उसको उजागर जब तक नहीं करते हैं, तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलता है। खाना खाते हैं सिंपल भूख मिटाने के लिए, लेकिन खाना को ऐसे ही बनाते हैं, चावल का पाउडर बनाकर विभिन्न किस्म का
पिठा बनाते हैं, इडली, डोसा, बिरयानी, क्या क्या और खाबार बनाते हैं। गुरु पाक, जितने ज्यादा मसाला डालेंगे, जितने ज्यादा तेल घी डालेंगे, जितने ज्यादा आग में उसको पकाएंगे, तो खाना का तो 12टा बजता ही है। वो खाना खाकर हमारा शरीर का 12 बज जाता है, लेकिन उसमें संतुष्टि मुझे, हाँ खाना खाया आज। ऐसे ही जो हम लोग वस्त्र परिधान करते हैं लज्जा निवारण के लिए, लेकिन ऐसा वस्त्र आधुनिकता का नाम पर, अत्याधुनिकता का नाम पर ऐसा ही वस्त्र यूज करते हैं ताकि और लज्जा ज्यादा जनसमक्ष में ज्यादा उजागर कर पाए। लज्जा को तो निवारण तो दूर, लज्जा को हम ज्यादा उजागर करते हैं। चेन नहीं, लेकिन हमारा आध्यात्मिकता में ये कॉम्प्लेक्स का कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस ऑफ कॉम्प्लेक्स इन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी आदमी को सहज, सरल, सीधा बनाता है। কেননা আমরা জানি আধ্যাত্মিকতা মানে মানস আধ্যাত্মিক তরঙ্গকে সরল থেকে সরলীকরণ করা। আমাদের মানস তরঙ্গ, ক্রুড তরঙ্গ, এই তরঙ্গকে সহজ সরল করে সরল রেখা স্টেট লাইনে নিয়ে আসাই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা বাস্তব জীবনে করি কি, আমাদের জীবনকে কমপ্লেক্স করে গড়ে তুলি। এক ব্যক্তি এক সাধুর কাছে গেল, সাধু বাবা আমাকে কিছু একটু দীক্ষা দেন, কিছু আধ্যাত্মিকতা যাতে আমি আমার উন্নতি হয়। তখন বলল, দেখো তুমি একাগ্রতার সাথে একান্তে বসে তার নাম জপ করবে। এই মন্ত্র দিলাম, এই মন্ত্র একান্তে বসে একাগ্রতার সাথে জপ করবে। আচ্ছা, তো মনে মনে ভাবলো এটা আবার কি গুরু, এ সব জায়গা তো বইতে তো লেখা আছে একাগ্রতার সাথে প্রভুর নাম জপতে হবে। তার সন্তুষ্টি হলো না। আগের সাধুর শিষ্য, সে বুঝলো বাবা আমার গুরু যা বলেছে তাতে ওর পছন্দ হয়নি, মানে এর এই সরল পথ এর পছন্দ হয়নি। তখন ওই পথটাকে ওইটাকেই কমপ্লেক্স করে বলল, দেখো তোমাকে 4টার সময় উঠতে হবে, ঠান্ডা জলে স্নান করতে হবে, নতুন বস্ত্র বা ধোয়া বস্ত্র পরিধান করতে হবে, একই জায়গায় একই আসনে তোমাকে বসতে হবে, তার গুণগান করে তার কীর্তন করতে হবে, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে হবে, তোমাকে পদ্মাসনে বসতে হবে, মেরুদণ্ড সোজা করে চোখ বন্ধ করে বসতে হবে, ভূত শুদ্ধি, আসন শুদ্ধি, চিত্ত শুদ্ধি করতে হবে, দিয়ে তুমি এই মন্ত্র জপ করবে একাগ্রতার সাথে। বলে হ্যাঁ এটা কিছু হলো, আলটিমেটলি কথাটা একই, একাগ্রতার সাথে মন্ত্র জপ। কিন্তু প্রথম গুরু, প্রথম সাধু তাকে সিম্পল ভাবে যখন বলল তার পছন্দ হলো না। কিন্তু সেকেন্ড মানে এই প্রথম সাধুরই শিষ্য যখন বুঝে গেল ওর সাইকোলজি, ও কমপ্লেক্স চায়, জটিলতা চায়, তখন তাকে জটিল করে বলল, যখন তখন সন্তুষ্টি হলো। অথচ জটিলতার মানে কমপ্লেক্সের কোনো স্থান নেই আধ্যাত্মিকতাতে। আমরা জীবনে সুখী হওয়ার জন্য, বেশি সুখী হওয়ার জন্য জীবনটাকে খুব করে কমপ্লেক্স, জীবনকে খুব জটিল করে তুলি।
বিভিন্ন তীর্থস্থানে যাই, স্থান ভালো লাগে না, তাই আমরা যাই অমরনাথে, আমরা যাই কৈলাসে, আমরা যাই বৈষ্ণব দেবীতে, যেখানে যেতে যেতে কয়েকজন লোক মারাই যায় প্রতি বৎসর। সব সময় খোলা থাকে না। অথচ যে তীর্থস্থানটা আমাদের ভিতরে রয়েছে, অতি সহজ সরলে একটু অন্তর্মুখী হলে যাকে পাওয়া যায়, সেটা আমাদের পছন্দ হয় না। মানে কমপ্লেক্স ছাড়া, মানে জটিলতা ছাড়া আমাদের পছন্দ হয় না। আমরা উল্টো পথে চলি। মানুষ সুখী হওয়ার জন্য একটা বিয়ে করে, দুটো বিয়ে করে সুখী হতে হবে বলে, বেশি সুখ ভোগ করবে বলে, আরো কত কি আসবাবপত্র, জিনিসপত্র, সব সব মডার্ন কি বলবে আসবাবপত্র কিনে ঘর ভর্তি করে দেয়। কিন্তু যতই মডার্নাইজড হতে যায়, সে তত বেশি ওই চক্করে ফেঁসে যায়। পত্নী নিয়ে এলো সুখে থাকার জন্য। পত্নী যদি সহধর্মিনী যদি না হন, পত্নী যদি অর্ধাঙ্গিনী যদি না হন, তো পত্নী তাকে বিপদ ডেকে নিয়ে আসে। অমনি লোকে মজা করে বলে যে পত্নী আর পাকিস্তান দুটোই বরাবর। पाकिस्तान कब जंग छेड़ देंगे, पाकिस्तान कब कहां आक्रमण करेंगे, कोई बोल नहीं सकता है। पत्नी का मूड कब बिगड़ जाएगा, पत्नी कब रुष्ट हो जाएंगे, पत्नी कब छोड़कर मतलब हिंदुस्तान सहते रहते हैं, पाकिस्तान आक्रमण करता है, इंडियन सोल्जर को मारते रहता है, लेकिन इंडिया जो है उसको टॉलरेट करते रहता है, टॉलरेट करते जाता है। हस्बैंड भी ऐसे ही है, पत्नी कितना रूठ जाती है उसको मनाते रहता है। पत्नी कब जो लड़ाई कर लेंगी, कब मतलब झगड़ा कर लेंगी, कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन पति जो है, हस्बैंड जो है, उसको सहन करते रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि पत्नी जो है पाकिस्तान और पति को बोलता है हिंदुस्तान। सुख बढ़ाने के लिए, सुख भोग करने के लिए आदमी अपना जिंदगी को बहुत ज्यादा जटिल बनाते हैं। एक व्यक्ति का शादी नहीं हो रही है, তা একজনের বিবাহ হচ্ছে না অনেক দিন থেকে। বিবাহ যখন হচ্ছে না, তখন এই জ্যোতিষীর কাছে গেল। জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে বলছে, জ্যোতিষী আরে আপনার আমার হাতটা দেখুন তো, কেন আমার বিবাহ হচ্ছে না। তো জ্যোতিষী হাত দেখলো, একটু মুখের দিকে তাকিয়ে কপালটা দেখলো, দেখে বলছে আরে তোমার বিবাহ এই জন্য হচ্ছে না, তোমার হাতে তোমার কপালে তিল মানে দুঃখ নেই, সুখই সুখ আছে। যখন সুখই সুখ রয়েছে, দুঃখ যখন নেই, তখন তোমার বিবাহ হবে কি করে। সে বলে দুঃখের সাথে আবার বিবাহের কি রয়েছে। বলে বিবাহ মানে হচ্ছে মানে বিপদ, বা আমি বিবাহের নিন্দা করছি না, বিবাহ সিস্টেম রয়েছে, কিন্তু পত্নী যদি সহধর্মিনী হন কোনো আপত্তি নেই, ভালোই। সহধর্মিনী অর্ধাঙ্গিনী মানে কি, অর্ধাঙ্গ মানে ফিজিক্যাল লেভেল, সহধর্মিনী মানে সাইকিক লেভেল এবং স্পিরিচুয়াল লেভেলে যদি হাজব্যান্ডকে হেল্প করে, হাজব্যান্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করে, তিনি সহধর্মিনী। তিনি কিন্তু সব সময় হয় না তো, তাই ওই জন্য লোকে অনেক সময় মজা করে বলে বিবাহ মানে হচ্ছে বিপদ বাড়ানো হলো। আর সমাজ এটা স্বীকৃতি দেয়,
বিবাহের সময় আরো 10-20 জন লোক সাক্ষী থাকে, হ্যাঁ আমরা এই বিবাহে সাক্ষী থাকলাম, মানে তোমার এই যে বিপদ বাড়ানো হলো এতে আমরা সাক্ষী থাকলাম, তুমি বেটা ভুগো, সারা জীবন ভুগতে থাকো, আমরা সাক্ষী, আমরা দেখতে থাকবো। বলার উদ্দেশ্য, জীবনকে মানুষ কমপ্লেক্স না করলে মানুষ শান্তি পায় না। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে মানুষকে সরল করা, সহজ করে। ওই জন্য বলে যারা পৌঁছে হয়ে মহাত্মা যারা রয়েছেন, যেন শিবকে বলা হয় ভোলে বাবা। ভোলে বাবা মানে খুব সহজ, খুব সরল তার নেচার, গালি টালি দিয়ে গায়ে লাগে না। তারা উপর লেভেলে থাকে, তাদের মাইন্ড সব সময়, তাদের মেন্টাল ওয়েভ সব সময় আধ্যাত্মিক ওয়েভের সাথে থাকে, যার ফলে তাদের মন সরল। আর দুনিয়াতে জগতের সাথে যারা বেশি ঘুলে মিলে থাকে তারাই কমপ্লেক্সকে পছন্দ করে, তারাই জটিলতাকে পছন্দ করে। কিন্তু এই জটিলতা আমাদের আধ্যাত্মিকতার পথে চলতে বাধার সৃষ্টি করে। আধ্যাত্মিকতার পথে চলতে আমাদের যে গতি রয়েছে, সে গতিতে সহজ সরল হয়, মানে মানুষের মন যেন সবসময় সহজ সরল হয়। মানুষকে তো চলতে হবে, মানুষকে তো এগোতে হবে। দুনিয়াতে যখন কোনো কিছু মানুষ করতে যায়, তখন তাকে দেখে যে বিভিন্ন ধরনের তাকে সাজ সরঞ্জাম জোগাড় করতে হয়। যদি একটু তরকারি বানাতে হয়, সবজি কিনে আনো বাজার থেকে, জল নিয়ে আসো, ওকে ধুয়ো, কাটো, কড়াই নিয়ে আসো, আগুনের ব্যবস্থা করো, আগুনের উপরে কড়াই চাপাও, তেল মশলা দাও, অনেক ঝামেলা, তারপরে সবজি তৈরি হয়। একটা ডাক্তার MBBS ডাক্তার হতে গেলে 18-20 বছর তাকে পড়তে হয়। একটা সাধারণ উকিল হতে গেলে তাকে 15-16 বছর পড়তে হয়। তাই মানুষ ভাবে এই যে দুনিয়াতে কোনো কিছু উপার্জন করতে গেলে, কোনো কিছু প্রাপ্ত করতে গেলে যেমন জটিলতার সাথে, মানে যেমন জটিলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, ঠিক এইরকম ভগবানকে পেতে গেলে ওইরকম জটিলতার মাধ্যম দিয়ে যেতে হবে। তাই ভগবানকে পাওয়ার জন্য তারা সেই জটিলতার মাধ্যম দিয়ে যেতে চায়। কিন্তু না, ভগবান তো দেশ কাল পাত্রের অতীত, পাত্রাতীত। তা ভগবানকে পাওয়ার জন্য কোনো কিছু জোগাড় যন্ত্র করতে হয় না, তিনি তো সর্বত্র সব জায়গায় রয়েছেন। তিনি প্রেজেন্ট টেন্স, ছিলেন নয় আছেন, থাকবেন নয় আছেন, প্রেজেন্ট টেন্স। আবার আজকালকে যখন ফিউচার কোনো জটিল পথে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। দুফোঁটা চোখের জল ফেলুন, তাকে নিষ্ঠা সহকারে ডাকুন। রামায়ণে যুদ্ধ পর্বতে, বাল্মীকি রামায়ণের যুদ্ধ পর্বতে রয়েছে যে শক্রুদেব প্রপন্নায় তব স্মৃতি চ যাচতে অভয়ম সর্বভূতেভ্য দদামি এতদ ব্রতম মম। রামচন্দ্র বলছে যে তব স্মৃতি, আমি তোমার, এই ভাবনা যে যার মনে আসবে আমি তোমার, মানে যে সমর্পণ করে দেবে আমি তোমার, এই সারেন্ডারের ভাবনা যার মনে আসবে,
ওই রকম সবাইকে আমি অভয় প্রদান করি এবং এটা হচ্ছে আমার ব্রত। বলছেন কি সহজ সরল, তুমি খালি আমাকে ডাকো, ডাকলেই পাবে, সহজ সরল, কিন্তু ডাকার মতো ডাকতে হবে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মাম একং শরণং ব্রজ, মাম একং, খালি আমাকেই স্মরণ করো, সর্ব পাপেভ্য, তোমার সমস্ত পাপের থেকে আমি তোমাকে মুক্তি দেব, আমাকেই ডাকো। সিম্পল রাস্তা। তারক ব্রহ্ম আনন্দ মূর্তিজি বলছেন দুবেলা সাধনা করো, রেগুলার দুবেলা সাধনা করো, যেই অবস্থাতে যেখানেই থাকো না কেন, হসপিটালে থাকো, বেডে শুয়ে শুয়ে সাধনা করো, ট্রেনে যাচ্ছ বসে বসে সাধনা করো। কিন্তু মানুষ বিভিন্ন জটিল 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 যত 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 যে তীর্থক্ষেত্রটা বললাম, যে তীর্থক্ষেত্র যত দুর্গম, যেতে যত কষ্ট হয়, সেটাই তত জীবন্ত বলে মনে করে। তাই দেখেন ওই সব পাহাড়ের উপরের দিকে রয়েছে বড় বড় তীর্থক্ষেত্রগুলো, সব পাহাড়ের দিকে, হরিদ্বার, ঋষিকেশ, অমরনাথ, বৈষ্ণব দেবী, সব পাহাড়ে, মানে দুর্গম দুর্গমে। সিম্পল, সহজ সরল ভাবে সে তার পছন্দ হয় না। তাই তার মানুষের দুটো ভ্রম রয়েছে মনে। একটা ভ্রম কি, তাকে পেতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, মানে অনেক জটিলতার মাধ্যম দিয়ে যেতে হয়, এই একটা ভ্রম। দ্বিতীয় ভ্রম হচ্ছে তাকে পেতে গেলে যোগ্যতার दरकार, क्वालिफिकेशनের दरकार। आदमी का दो भ्रम है मन में। पहला भ्रम क्या है कि भगवान को पाने के लिए हमको बहुत सारे जटिल रास्ता में जाना पड़ेगा, लेकिन रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री श्री आनंद मूर्तिजीर जे अभय बाणी, ताते देखा जाच्छे, ताते हम उसमें हम देख रहे हैं अति सहज सरल में करते करते मन जब थोड़ा उन भावना में भावित हो जाता है, तब दो बूंद आंसू जब गिर जाता है, यही है भक्ति। सिंपल भक्ति को जागृत करने से ही वो मिलते हैं। कोई जटिल रास्ता में जाने का कोई जरूरत नहीं है। दो नंबर भ्रम है क्या, हमको बहुत योग्यता चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन कोई पार्थिव क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। मतलब पार्थिव जगत में हम जो क्वालिफिकेशन अर्जन करते हैं, किसी प्रकार कोई क्वालिफिकेशन का जो जरूरत नहीं है। बोलते नायामात्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, जो मयि वेश तेन लभ्य, तथैष्ठ आत्मा। विद्वान पंडित होने से मिलेंगे, बहुत ज्यादा धनी होने से मिलेंगे, नहीं। जो क्वालिफिकेशन हम लेकर आए हैं, जन्म का साथ साथ जो क्वालिफिकेशन लेकर आए हैं, प्रकृति शिष्ट जो क्वालिफिकेशन, नेचर क्रिएटेड जो क्वालिफिकेशन, दैट इज एनफ, मोर देन एनफ टू अचीव हिम। क्या नेचुरल क्वालिफिकेशन? शरीर, मन और आत्मा। शरीर लेकर जन्म लिए हैं, मन शरीर को गाइड करने के लिए मन है, और साक्षी सत्ता जो आत्मा है, परमात्मा का जो प्रतिफलन है मन में, यही दिस इज मोर देन सफिशिएंट। कोई वर्ल्डली कोई क्वालिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं।
है, जीवात्मा है, वो परमात्मा का साथ मार्च कराने का जो प्रोसेस है, जो योग साधना है, उसको फॉलो करना है। बस सिंपल दिस क्वालिफिकेशन इज मोर देन सफिशिएंट। इसका ऊपर कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र में भूरी भूरी प्रमाण আছে, শাস্ত্রতে ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে, কোনো কোয়ালিফিকেশন দরকার হয় না। বয়সের কোনো বয়সের দরকার নেই। ধ্রুব প্রহ্লাদ কত বছর বয়সে হরিকে পেয়েছিল? 5 বছর বয়সে, 7 বছর বয়সে। তাই আমাকে সিনিয়র সিটিজেন হতে হবে, নতুবা পাওয়া যাবে না, তা নয়। কেউ ভাবে আমাকে ধনী হতে হবে তবেই তাকে পাওয়া যাবে, তা নয়। সুদামা, মধুমঙ্গল, কৃষ্ণের যারা সব থেকে অন্তরঙ্গ সখা ছিল, তারা ছিল গরিব ব্রাহ্মণ, ভিক্ষা মেঘে খেত। সুমঙ্গল, সুদামা, তারাই ছিল সব থেকে কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ বন্ধু, কৃষ্ণকে পেয়েছিল। তাই धन दौलत से भगवान मिलते हैं ये बात नहीं है। हमारे बांग्लादेश में हमारे एक मार्गी गायक हैं, नाम है की विश्वास, नकुल विश्वास। नकुल विश्वास का उस गाना है, उस गाना में बोलते हैं अगर भोग से, मिठाई से अगर भगवान मिलते हैं, जैसे भगवान का दरबार में आ जाते हैं, भोग चढ़ाते रहते हैं, मिठाई चढ़ाते रहते हैं, ये मिठाई से, भोग से अगर भगवान मिलते उनको ही भगवान मिल जाता, क्योंकि वो तो शुगर बनाते रहते हैं, मिठाई बनाते रहते हैं, बोरा बोरा शुगर उत्पादन करते हैं, तो इसलिए कोई धन से नहीं मिलते। किसी किसी का मन में मतलब भ्रम है कि उनको पाने के लिए हम उच्च जाति में जन्म लेना पड़ेगा, मतलब हमारा जो परिवार खानदान होना चाहिए, ब्राह्मण परिवार या उच्च जाति होना चाहिए, ऐसा नहीं। संधि प्रस्ताव लेकर जब श्री कृष्ण गए थे तो दुर्योधन उनको निमंत्रण किया लंच के लिए, लेकिन दुर्योधन का अट्टालिका में नहीं गए। कहां गए? विदुर की कुटिया में। विदुर का क्या जात था? दासी का पुत्र थे। लॉन्च किए, दुर्योधन का राजप्रसाद में, राजमहल में नहीं गए। ऐसे ही भूरी भूरी प्रमाण है, ये किसी प्रकार कोई पार्थिव क्वालिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं है। कोई रूप से पाते हैं नहीं। कृष्ण का साथ कंस का जो दासी थी कुब्जा, 8 जगह में टेढ़ी थी, नाटी सी 8 जगह में टेढ़ी, ऐसे उसका उनका साथ कृष्ण का प्रेम हो गया। तो उसके लिए कोई रूप का जरूरत नहीं है। आजकल देखते हैं मंदिर में मेकअप कर बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहनकर कोई जाती है। क्यों आप मेकअप सेंट लगाकर भगवान का दरबार में जाने का क्या जरूरत है? किसको प्रलुब्ध करने के लिए तुम लोग चाह रहे हो? भगवान को? अरे जो सारे इतना ब्यूटीफुल दुनिया बनाए हैं, तुम्हारा मन में जो सेंस ऑफ ब्यूटी जो डाले हैं, तुम उनको प्रलोभित करने के लिए, उनको सम्मोहित करने के लिए प्रयास कर रही हो। और मंदिर में जाकर इतना परिपाटी कर जब आए हैं, देखा कि अगल बगल कोई देख नहीं रहा है, तो उसका मन में जलन होता है। इतना हम खर्चा कर इतना परिपाटी कर आए, कोई मुझे देख नहीं रहा है, तो मन में क्या मानसिकता है? परमात्मा की चिंता छोड़कर जड़वादी चिंता है, जड़ की ओर चिंता है। अरे महामूर्ख, ये तो सोचो। रूप देने वाले
तुम्हारे मन में ये ब्यूटी का सेंस फीलिंग देने वाले जो है, उनको तुम क्या प्रलोभित करोगे? तो कोई रूप से भगवान प्राप्ति होते हैं, ये भी गलत है। ऐसे ही शास्त्र में है, गजेंद्र हाथी एलिफेंट को कुम्भीर का मुंह से बचाए थे विष्णु। जटायु पक्षी, रावण जब सीता को हरण कर कर ले जा रहे हैं, तब रावण का साथ लड़ाई करने के लिए जटायु रावण का साथ जब लड़ रहे थे, रावण देखा अरे पक्षी मेरा साथ, मैं इतना एक महापराक्रमशाली राक्षस हूं, मेरा साथ लड़ने आया, तो उसका दोनों पंख काट दिया। काटने का बाद जटायु जो नीचे गिर पड़े, राम नाम राम राम बोलते रहे। रावण तो ले गए सीता को। तो रास्ता में जाने वाले बोलते अब राम राम कर कर क्या होगा? तुम्हारा कट गया पंख, तुम उड़ नहीं सकते हो, तुम उड़कर राम का पास जा नहीं सकते हो, तुम काहे अब राम राम कर रहे हो? जटायु बोलता है और राम का पास जाने का तो आसान हो गया तरीका, अब तो मेरा दायित्व नहीं है राम का पास जाने का, अब राम का दायित्व है मेरा पास आने का। मेरा जो पंख था, मेरा जिम्मेवारी था, मेरा ड्यूटी था उड़ उड़ कर राम का पास जाना, तो मेरा पंख कट गया, मैं जा नहीं सकता हूं। अब राम का दायित्व है, राम का कर्तव्य है, राम आएंगे मेरे पास। और सचमुच से राम आकर क्या आकर मतलब सीता किधर गया, मन कौन ले गया, ढूंढते ढूंढते आकर जटायु को जब देखे राम राम जप रहे, जटायु को दाह संस्कार शेष संस्कार राम ने किया, भगवान अपना हाथ से किया। कहीं कहीं प्रदीप लेकर मंदिर में जाते हैं, प्रदीप से भगवान को आरती करने के लिए। अरे भगवान को क्या प्रदीप दिखाओगे? बोलते हैं नौ तत्र सूर्य भाति नौ चंद्र तारकाम नेवा विद्युत भांति कुतमय अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमेव विधाति। उनका जो प्रकाश सारे दुनिया को प्रकाशित करता है, उनको क्या तुम प्रदीप दिखाकर क्या प्रकाश दिखाओगे? उनको प्रदीप लेकर क्या आरती करोगे? उनका प्रकाश तो हर जगह में है, सब जगह सूर्य प्रकाश जेमन सब জায়গাতে। सूर्य गंगार উপরে सूर्य प्रकाश রয়েছে, পবিত্র গঙ্গাতে সূর্যের প্রকাশ নর্দমাতেও রয়েছে। সূর্য বলে না যে ওটা নর্দমা নোংরা, তাই আমি ওখানে প্রকাশ ডালবো না, সে বলে না, সব জায়গাতে সূর্যের প্রকাশ রয়েছে। তাই পরমাত্মার প্রকাশ, পরমাত্মার কৃপা সব জায়গাতে রয়েছে, 100% প্রকাশ রয়েছে, কোথাও হাতির উপরে 100% কি করে? আরে পিঁপড়ের আধারটা ছোট বলে সে আধার ছোট হওয়ার জন্য সে অতটুকু গ্রহণ করছে, কিন্তু প্রকাশ তো 100% রয়েছে। তাই তার প্রকাশ সব জায়গাতে, একটা পিঁপড়ের উপরেও যা একটা হাতির উপরে যা তাই তার প্রকাশ সব জায়গাতে রয়েছে, 100% প্রকাশ রয়েছে। তাকে কি আলো দেখাবো, তাকে কি প্রদীপ দেখাবো? এই মানুষের ভ্রম এগুলো। যে যোগ্যতা से परमात्मा मिलते हैं, नहीं कोई योग्यता से, कोई योग्यता का जरूरत नहीं है, खाली एक ही योग्यता क्या है, बस एक ही योग्यता चाहिए, हाथ उठाओ, हे परमात्मा, हे बाबा तुम मेरे लिए, मैं बार बार बोलता हूं, तुम मेरे लिए बिल्ली मां बनो। बंदरी जानते हैं, बंदरी मतलब मां बंदर, बंदरी को उसका बच्चा नहीं पकड़ता है, ये बच्चा पकड़ता है, मां नहीं पकड़ती है।
बंदरी अगर बच्चा को पकड़ ले तो उसका दोनों हाथ उस बच्चे को पकड़ेगा, तो एक पेड़ से दूसरा पेड़ कैसे वो जंप करेगी? इसलिए बच्चा उसको पकड़ता है माँ को। अब माँ एक पेड़ से दूसरा पेड़ जंप करते रहती है। कभी बच्चा अगर गिर पड़े, बच्चा मर भी सकता है। लेकिन बिल्ली माँ को देखे हैं गांव में, बिल्ली जब बच्चा जन्म देती है, माँ बिल्ली जहां निरापद जगह देखकर वहां जन्म देती है। फिर थोड़ा बहुत तनिक भी मन में शंका आ गया कि ये जगह निरापद नहीं है, तो बच्चा को ऐसा यहाँ पकड़कर जाकर दूसरा जगह में ले जाती है। तो क्वालिफिकेशन, हमें कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए? बोलना है, हाथ उठाकर बोलना है, हे बाबा तुम मेरे लिए बंदर मां मत बनो, क्योंकि मेरे ये क्षुद्र बुद्धि से मुझे मालूम नहीं है कहां पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, कब पकड़ना है। गिरने का संभावना हमेशा रह जाती है। इसलिए तुम मेरे लिए बिल्ली मां बनो। तुम मेरा भूत भविष्य वर्तमान जानते हो, मेरा कहां कल्याण कहां अकल्याण तुम जानते हो। इसलिए तुम मुझे शुभ बुद्धि देकर शुभ पथ में परिचालना करो, जहां मेरा कल्याण, कल्याण मतलब क्या? जहां मेरा हित, हित मतलब क्या? शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक कल्याण जहां है, तो हित का पथ में मुझे ले चलो। मेरा मोक्ष मुक्ति जिस पथ में होगा उस पथ में ले चलो। यही क्वालिफिकेशन जरूरत है। और ये क्वालिफिकेशन का कोई अर्जन करने की बात नहीं है, ये हम लेकर ही आए हैं कि हमारा ऊपर चैतन्य का अभिव्यक्ति है, इसलिए तो मैं जिंदा हूं। एक पल के लिए का चैतन्य हट जाए, हम मृत हो जाएंगे, तब ये डेड बॉडी हो जाएगा। तो हमको देखने से दुनिया डरते रहेगी, अरे बाप रे भूत है भूत। लेकिन चैतन्य का अभिव्यक्ति है, इसलिए हम मनुष्य हैं। इसलिए चैतन्य जब है, चैतन्य का धर्म है कि परम पुरुष के ब्रह्म की ओर ले जाना, परम पुरुष के पाना, ब्रह्म संप्राप्ति। तो इन वन जो क्वालिफिकेशन मेरे पास है, ये शरीर है, मन है, और ब्रह्म को संप्राप्ति, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मेरा पास जो 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 इन वन क्वालिफिकेशन है, यही क्वालिफिकेशन हमको चाहिए, यही क्वालिफिकेशन से हम उनको पाएंगे। इसलिए ये आध्यात्मिकता का पथ जो है, ये सहजता का पथ है, सिंपलनेस का पथ है। इसमें कोई जटिलता का कोई, इसमें क्या बोले, कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम जितना ही सहज सरल होंगे, जितना ही हम उठाएंगे, हाथ उठाते हैं तब, कब हाथ उठता है? उनका प्रति जब सरेंडर की भावना, मन जब सीधा सीधा नेटवर्क दिखाई पड़ता है, जो मोबाइल का नेटवर्क, इंटरनेट का नेटवर्क दिखाई पड़ता है, कैसा रंग है, क्या रूप है, दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन मोबाइल ऑन कीजिए, नेट आ जाता है। हर जगह में नेटवर्क जैसा उनका उपस्थिति है। खाली कनेक्शन का जरूरत है, ठीक जगह पर आप कनेक्ट कीजिए। आपको प्रभात संगीत सुनना है तो प्रभात संगीत का जो ऐप है वहां क्लिक करना पड़ेगा, तब आएगा तुम्ही अमार ध्यान तुम्ही अमार ज्ञान आएगा। अगर बॉलीवुड का ऐप में अगर क्लिक करते हैं, हॉलीवुड का ऐप में अगर क्लिक करते हैं, तो प्रभात संगीत नहीं आएगा। तब वही आएगा तुरंत करना है। अभी जरा में मुरब्बा बाजार में बहुत मिलता है, मुरब्बा
आमलकी का मुरब्बा, आमलकी का टेस्ट कैसा है? तीता है, कसाय है। लेकिन वो मुरब्बा को, आमलकी को, तीता कसाई वाला आमलकी को चीनी का रस में या शहद में डुबाकर रखने से 1-1.5 महीना के बाद वो जो मुरब्बा चीनी जैसा मीठा हो जाता है। मतलब वो आमलकी चीनी जैसा, शहद जैसा मीठा हो जाता है। इसलिए ये माया का बंधन में रहने वाला मन को आप डुबाइए, वहां कनेक्शन वहां कीजिए। कौन कनेक्शन? आनंद का नेटवर्क में, परम पुरुष का नेटवर्क में कनेक्ट करके रखिए। देखिए आपका मन आनंदित होते रहेगा, हमेशा आनंद भोग करते रहेंगे। कनेक्शन करना ही मेन चीज है। बोलता है तो ये जब तक हम प्रॉपर जगह में कनेक्ट कर नहीं पाते हैं तब तक हम भटकते रहते हैं। विभिन्न तीर्थ स्थान जाते हैं, क्यों? वही कनेक्ट करने के लिए। कहां भगवान है, कहां भगवान है, कहां भगवान है? कहीं जाने का जरूरत नहीं है, सब जगह में, हर जगह में है। खाली प्रॉपर जगह में कनेक्ट कीजिए और स्विच को ऑन कीजिए, बस। आपका ये आमलकी मुरब्बा बन जाएगा, बनेगा और बना हुआ रहेगा। आपका ये बाल्ब, मैं हमेशा बोलता हूं, हम लोग बाल्ब हैं, बाल्ब। बाल्ब अगर फ्यूज हो जाए तो लाइट नहीं देता है। हम बाल्ब हैं, हमारा कर्तव्य है इसको फ्यूज नहीं करना है, इसको सही रखना है। तो हमारा स्विच हमेशा ऑन रहेगा ही। हमारा पावर हाउस है इनफाइनाइट, परमात्मा बाबा। कभी लोड शेडिंग होने वाला नहीं है, कभी पावर का शॉर्टेज होने वाला नहीं है। और हम जब उनका काम के लिए, उनके लिए, उनको बाबा माने हैं, उनको गुरु माने हैं, उनका संस्था के काम के लिए जब हम अपना कूद पड़े हैं, इसलिए हमेशा वो उनका स्विच ऑन किया हुआ ही रहेगा। स्विच ऑन किया हुआ है, पावर सप्लाई है इनफिनाइट। लेकिन बाल्ब फ्यूज नहीं हो, ये दायित्व मेरा है। बाल्ब को ठीक रखिए, यही काम है। बाल्ब को ठीक रखने के लिए कोई ज्यादा कायदा कानून की जरूरत नहीं है। बाल्ब को ठीक रखने के लिए 2 बूंद आंसू गिराइए, थोड़ा हाथ उठाइए, बोलिए हे बाबा तुम मेरे लिए बिल्ली मां बनो, और हमेशा के लिए आपका बाल्ब ठीक रहेगा। प्रकाश देते रहेंगे, दुनिया का कल्याण करेंगे, कल्याण करते रहेंगे। दुनिया का प्रेम मोहब्बत आपको मिलते रहेगा, परम पुरुष की असीम कृपा और हेतु की कृपा मिलते रहेगी, और अपना लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। यही है। इसलिए आध्यात्मिकता जो है, ये पाथ ऑफ सिंपलनेस, इसी पाथ पर हमको चलना है, तब हम अपना लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। परमपिता बाबा की जय।